So today we will discuss the analysis of portal frame. Portal frame. What are the portal frames? First of all, you should know. So the portal frames are very simple. These are such type of structure consisting of beams and columns. These are the portal. कुछ और नहीं, यही है. 1 bay, 2 bay, 3 bay. कितना ही है? कितने बे का? 3 bay. सिंगल स्टोरी है ना, सिंगल सेकेंड स्टोरी, थर्ड स्टोरी, इन दैट मैनर. इट मे हैव दिस टाइप आल्सो. In this type also, it may have also. नहीं तो मिक्स हो गया ना. यू कैन नॉट डिफाइन 1 way 2 way, ये नहीं रह गया, मिक्स हो गया. ओके, यू कैन हैव इन दिस मैनर, ऐसा इन दिस में. सो एनालिसिस ऑफ फर्स्ट टाइप ऑफ elements. My concern, today's concern is to analyze such type of members. अब बता सकते हैं what is the additional thing is here? What is the additional thing is here? क्या additional क्या है? What are the additional? Vertical members. These are the additional members. अभी तक हमने किया किसका? Only beam, analysis of beam किया. Till date we did the analysis of only beams. Columns were not incorporated to that structure. So the portal frames are the combination of are the system या combination of beams as well as columns. Simply बस. Depending upon the need, we have different types of portal frames. Known by different names. 1 bay, 2 bay is a simple philosophy of story, like story 1, story 2, story 3. बट इसके अलावा भी बहुत सारे हमारे पास फ्रेम के नाम आर्किटेक्चर्स लोग डिफाइन करते हैं. वो हमारा काम नहीं है ना. दैट इज नॉट आवर वर्क. आवर वर्क इज ओनली टू डिजाइन. ओके, सो today I am going to take a very simple example of that portal frame. Very simple example. After that I will switch over to the some bigger and complex type of portal frame, and I will try my best to find all and moments in a very simplified manner, and I hope it is that you will learn, you will enjoy a lot of while calculating the values of end moments. Because analysis of portal frame, it requires some basic, it does not require some, it does not only require the concept, it requires some understanding how to save your time in calculating the things. That is the prime thing. Until unless you are not aware how to save your time, you will not be comfortable in calculating the values. That is the main problem. That is the main big problem for the beginners. और बिगनर्स लोग इस क्वेश्चंस को नहीं करते हैं, उसका रीजन यही होता है क्योंकि अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है स्टार्टिंग में कि कैसे हम समय को बचाएं. क्योंकि वो जो 2 लाइंस में होना है उसको जो है ना 1 पेज पूरा कंप्लीट कर दे रहे हैं. तो वो चीज में बेसिक चीज, सच टाइप ऑफ बेसिक थिंग्स मैं आपको बता चुका हूं, इससे पहले मैं बता चुका हूं, और वही चीज को मैं यूज करूंगा यहां पे टू एक्सप्लेन दैट सीक्रेट. एंड आफ्टर दैट योर वर्क विल स्टार्ट. क्या होगा आपका काम? क्या होगा? यस, आपको खुद चीजें डेवलप करनी है, ट्रिक्स डेवलप करनी है आपकी अपनी. ओके, सो टुडे आई एम गोइंग टू टेक दिस सिंपल एग्जांपल. So I am going to take this example of
portal frame. Only this part. Usual is here, and point load of intensity 30 kilonewton. It's 2 kilonewton per meter. $15. Two meter is this, 2 meter is this, and the value of moment of inertia, it is 2I. For this it is also 2 meter, and this length is not, it is a 3 meter, 5 meter. Yes बेटे, बच्चे बोलो. Analysis of portal frame. Analysis of portal frame means structure having beam as well as this one vertical column. Moment of inertia for this segment, it is II. So this is our simple structure. This is our simple structure. सबसे छोटा, it is simplest. इससे छोटा हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? नहीं हो सकता. भाई एक वर्टिकल मेंबर के लिए 2 बीम तो चाहिए ना. 2 बीम, 2 सेगमेंट, 2 सेगमेंट ऑफ बीम और वर्टिकल मेंबर, इससे ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता. इससे कम कुछ हो नहीं सकता. इज द सिंपलेस्ट, स्मॉलेस्ट combination of beam as well as क्या ये column. Let us take this as point A, this as point B, this as point C, and this at point D. This as point D. UDL of intensity 2 kilonewton per meter, 30 kilonewton point load, eccentric है 3 मीटर 2 मीटर, एंड इन द सेम वे हॉरिजॉन्टल फोर्स इज एक्टिंग. कॉलम पे क्या लगेगा लोड? कैसा लगेगा? इधर हॉरिजॉन्टल तो लगेगा, आइदर विंड लोड और अर्थक्वेक या कौन सा कंप्रेशन टाइप ऑफ. ये कॉलम्स पे कैसा फोर्स लगेगा? कॉलम पे कैसा फोर्स लगेगा बताओ? या तो दिस पॉइंट बी पॉइंट से इसको दबाएगा या फिर इधर से लगेगा. ये सारी अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए, क्योंकि जब हम सारे फोर्सेस कैलकुलेट करेंगे ना, तो ये सारा का सारा दिमाग में अगर नहीं होगा तो कैलकुलेट कर पाना बड़ा मुश्किल होगा. किस मेंबर में कहां से फोर्स लग रहा है, दबा रहा है, ये इधर से लगा रहा है तो रिएक्शन इधर से प्रोड्यूस होगी क्या, ये सारा मैं भी यूज करूंगा. ये सारी चीजें अभी मैं रिएक्शन कैलकुलेट करते समय यूज होंगी. सोचना पड़ेगा कि इधर से अगर फोर्स लग रहा है, 15 किलो न्यूटन का फोर्स इधर से लग रहा है, तो रिएक्शन ऐसे ही प्रोड्यूस होंगी क्या, इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होंगी क्या? सिंपल. ओके. एंड बी पॉइंट पे कोई ऐसी चीज है, फोर्स है, जो कि इसको क्या करेगा, दबाएगा. नीचे तो जमीन है, जमीन के अंदर तो छेद करके जा नहीं सकता. फाउंडेशन बना रखी है, मजबूत फाउंडेशन बनाई है. कमजोर फाउंडेशन होगी तो सिंक भी हो सकती है. हम मान के चलते हैं सिंकिंग नहीं है, तो क्या होगा, ये कंप्रेस होगा तो फोर्स डेवलप हो जाएगा. क्लियर? सो वी हैव टू फाइंड ऑल द फोर्सेस इन दैट बीम एज वेल एज कॉलम. वी हैव टू कैलकुलेट ऑल नंबर ऑफ फोर्सेस, ऑल नंबर ऑफ फोर्सेस using displacement method. Using displacement method, that question can also be
slope is solved with the help of force method, consistent deformation method, but such type of questions are solved in displacement only, displacement method only. हमेशा किताब में देखिएगा कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन में ऐसे क्वेश्चन का सलूशन नहीं होगा, स्लोप डिफ्लेक्शन में ही आएगा, स्लोप डिफ्लेक्शन में या डिस्प्लेसमेंट में। क्या उसका कुछ रीजन है जो कि मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप थोड़ा सा कंफर्टेबल हो लो दोनों मेथड के बारे में। कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन से तो हो ही गए हो, थोड़ा डिस्प्लेसमेंट से भी हो जाओ और चीज़ें फिर अपने आप आपको समझ में आ जाएंगी क्यों कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन में ऐसे क्वेश्चन को हम जनरली कोई भी आथर एफर्ट नहीं करता है, कर सकता है लेकिन करता नहीं। क्लियर? सो जैसे हमने बीम में किया था वैसे यहां पर भी करेंगे। आपको मैं बता दूं बीम में क्या किए थे, हर एक ज्वाइंट को क्या किए थे, फिक्स किए थे, फ्री फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। यहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम जरा बताओ। एक तो यहां पे काइनेमेटिक इंडिटरमिनेंसी इक्वल्स टू, पहले देख लो यहां पे 0 डिग्री ऑफ फ्रीडम, यहां पे रोटेशन और यहां पे और कोई, यस, दैट जॉइंट इज नॉट restrained and we cannot restrain that, it may move, it is free to atmosphere, it is free in atmosphere, open atmosphere में ये है क्या? देखो यहां पे तो हिंज है, ये तो नहीं मूव कर पाएगा। टोटल लेंथ ऑफ ए बी, टोटल लेंथ ऑफ नहीं, टोटल लेंथ ऑफ ए सी इट विल रिमेन सेम, बट विद इन AC means AB and BC there may be compression, may be expansion. जितना ये एक्सपेंड होगा उतना कंप्रेस होगा, एंड इन दैट सिचुएशन बी में शिफ्ट आइदर दिस वन और दिस वन। क्लियर? एंड बी में आल्सो शिफ्ट इन दिस वन, और ऊपर तो नहीं जाएगा क्योंकि लोड आएगा हैवी तो नीचे ही जा सकता है। सो द पोजिशन ऑफ बी कैन बी डिस्प्लेस, सो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी हियर। क्लियर? यहां पे 1, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम वी हैव हाउ मेनी, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, वी हैव 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 3 डिग्री। व्हाट आर दोस? लेट अस गिव द नेम थीटा बी, थीटा सी, और इसको क्या दें, इसको डेल्टा दे दें क्या, डेल्टा बी, डेल बी। सो दीज आर इंडिटरमिनेंसी थीटा, थीटा, theta b, theta c and del b. These are the indeterminacy, these are the kinematic indeterminacy. Okay, we cannot restrain that horizontal also, we cannot restrain, और ये तभी रेस्ट्रेन हो सकता है, क्या करें यहाँ पे, अगर कोई कहे कि भैया मैं रेस्ट्रेन करना ही करना है तो क्या कर सकते हैं, क्या करें, बी को कैसे रेस्ट्रेन किया जा सकता है? कुछ ऐसा करो कि यहां पे भी डंडे, कोई कॉलम यहां पे लगा दो, बिल्कुल रिजिड टाइप में कोई चीज, तभी हो सकता है। ओके, सो इसके बाद हमें कितनी इक्विलिब्रियम इक्वेशन, हाउ मेनी इक्विलिब्रियम इक्वेशन वी नीड, वी विल नीड 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन वी हैव टू डेवलप, एंड दैट इज द वर्क ऑफ SA2। तो ये तो है, इसके बाद तो SA1 चालू हो जाएगा। अच्छा, अब यहां पे आप थोड़ा सा मुझे बता सकते हो क्या कि जो मैंने सेकेंड लेक्चर मैंने डिलीवर किया था, हाउ टू सेव योर टाइम इन स्ट्रक्चर एनालिसिस, उसकी कुछ चीज यहां पे लग जाएगी क्या, सी पे। तो आप नीचे लिखें सिंस क्या, moment at C, that is MC equals to 0, MC equals to 0, यही है, 0 है। therefore there is no need to find the value of theta C, नीचे लिखो therefore no need to find which one, theta C।
और मैं रीजन आपको बता ही चुका हूं, क्यों नहीं पता है, क्यों नहीं जरूरत है, क्योंकि वो नोन है हमें, वो हिडन फॉर्म में हमें क्या है, नोन है। और कितनी नोन है अभी तक किसी ने मुझसे पूछा नहीं, और मैं बताऊंगा भी नहीं, कोई पूछेगा नहीं तो। यस, so we do not need to calculate the value of theta c. Okay, so we have only two variables to calculate. Which one? Theta b and delta b. Okay, और हॉरिजॉन्टल वाला काम हम बाद में करेंगे, तो इफेक्टिव जो है हमारा केवल एक ही रहेगा, थीटा बी। ओके, तो अब जरा देखो कैसे करना है। अच्छा, ये जो वर्टिकल मेंबर है ना, इसको आपको केवल आपको बी में ही समझना है। डू नॉट कंसीडर इज एज ए कॉलम व्हाइल एनालिसिस, फॉरगेट इट, फॉरगेट दैट दिस इज अ कॉलम, कंसीडर दैट दिस इज अ बीम। लेकिन कैसे कैसे? अभी भाई ये मालूम है कि ये गड्ढा है, तो हम कहें कि भूल जाओगे गड्ढा है, लेकिन गड्ढा तो गड्ढा ही रहेगा ना, पैर तो नहीं ना रख पाएंगे जब अनटिल अनलेस उसको कवर नहीं किया जाए। वैसे ही इसको हम कब इसको बीम मान सकते हैं? ऐसे अगर वर्टिकल रहेगा तो मान ही नहीं सकते। बात मेरी समझ में आ रही है जो कहना चाह रहा हूं? तो इसको दिमाग में थोड़ा सा वहम दे दो, थोड़ा सा उसको दिमाग को वहम दे दो। जैसे गड्ढे को कवर कर दिया आपने, कुछ रख दिया उसके ऊपर, एक वो रख दिया, तख्ती रख दी कोई सॉलिड, वहम खत्म हो गया। जब तक कोई नहीं हटाएगा नहीं पता चलेगा इसके नीचे क्या है। वैसे यहाँ पर भी दिमाग को कुछ ऐसा कर दो। क्या करो, ये जो बीडी पार्ट है ना, इसको ये जो बीडी पार्ट है ऐसे जो लगा हुआ है, दिस वन बी पार्ट एंड दिस इज डी है, दिस वन डी, ये ऐसा ही तो है ना, दिस वन। ओके, ये डी पार्ट को since the force is acting in this direction, in that direction, so ये BD पार्ट को imagine that this D is shifted in upward direction. Imagine, ये ऐसा होगा नहीं लेकिन थोड़ा सा इमेजिन करो। तो our BD, B point, B and D will be treated in this manner. ऐसे बात समझ आ रही है जो मैं कहना चाह रहा हूं? क्या किया मैंने, इसको मैंने क्या किया है, यहां पे घुमा के क्या कर दिया है, ऊपर कर दिया है। अब लग रहा है बीम, अब बीम मानने में कोई परेशानी किसी को नहीं होगी। क्लियर? पहली चीज क्या करते आप, अगर फोर्स इधर को लगा होता, इफ द फोर्स, if the given force is in direction, क्या करते आप, इसको आप क्या करते, उधर ले जाते हो, क्या दिक्कत है, इसको आप इधर ले जाते। तो ये कैसा हो जाता है, ये ऐसा कुछ हो जाता है क्या, डी पॉइंट इस बार इधर आ जाता है, बी पॉइंट यहां पे, बस सिंपल। क्लियर? और लोड कैसा हो जाता, हाँ बी पॉइंट ना, एवरी ज्वाइंट। इट्स अ गुड क्वेश्चन। मैं यहाँ पर भी किया, यहाँ पर भी। इट्स अ गुड क्वेश्चन। कोई भी ज्वाइंट, ये जैसे दिस वन, ऐसे इधर भी कुछ है, इधर भी कुछ है, ये सपोज यही पॉइंट भी है, या नहीं कोई भी है, कोई भी ज्वाइंट है, कोई क्या है, और ये सपोर्ट होता क्या है, कॉलम टाइप ऑफ थिंग। ठीक है, कोई मुझसे कहे कि मैं कॉलम बना पाने में बहुत दिक्कत है, आप कुछ भी कर सकते हो लेकिन कॉलम नहीं बना सकते। आप कुछ भी कर सकते हो लेकिन कॉलम नहीं बना सकते। लेकिन आप सिंगल मेंबर भी नहीं रख सकते। भाई कॉलम की जरूरत क्यों है, क्योंकि इसको सपोर्ट करना है। आप वो भी नहीं, आपको यहाँ पे सपोर्ट भी देना है, समझे मेरी बात, आपको यहाँ पे सपोर्ट भी देना है, और आप इसको सिंगल मेंबर भी नहीं दे सकते, लेकिन आप कॉलम भी आपको नहीं देना है। क्या करोगे आप, व्हाट ऑप्शन यू विल हैव। मतलब मैं प्रैक्टिकलिटी में नहीं आ रहा हूं, मैथमेटिकली कैसे करोगे, क्योंकि पहले मैथमेटिक्स शुरू होती है तभी तो सॉल्यूशन आएगा। क्योंकि मैंने कभी इसको सोचा नहीं, ऐसा इमीडिएट सोचना पड़ रहा है मुझे।
क्योंकि जो पूछा हुआ है यहीं से शुरू होता है। कैसे कर मैथमेटिक्स कैसे 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 हम शुरू कर सकते हैं? कॉलम को हमें, ये सपोर्ट को हमें हटाना है यहां से। कैसे कर सकते? जवाब दे सकते हो? आपको चीजें मैं बता चुका हूं, मैं आपको मैं चीजें बता चुका हूं। कैसे इसको सपोर्ट को मुझे हटाना है, कैसे करूं? क्या हम ऐसा कर सकते हैं? ये पॉइंट ले लें, बी ले लें, इधर का पार्ट इधर का पार्ट, कुछ हम ऐसा करें, कुछ हम ऐसा करें कि इसकी इस ज्वाइंट पे, इस ज्वाइंट पे, इस ज्वाइंट पे इतना मजबूत फेविक्विक्स लगा दें कि ये जो बेंडिंग है ये इतनी स्ट्रेंथ, इतनी बेंडिंग, सपोज इस ज्वाइंट पे ये वैल्यू आ रही थी 50 किलो न्यूटन मीटर की, बात समझिएगा। नहीं ये तो सपोज इस ड्यू टू लोड ये 50 किलो न्यूटन मीटर ये है ड्यू टू लोड, ड्यू टू लोड। सपोज कि इस तरीके की बेंडिंग आ रही थी, सपोज कि बी ज्वाइंट पे भाई इस पे कुछ लोड वोड लगा होगा, इस साइड कुछ लगा होगा, तो क्या होगा? बेंड करेगा इसको। तो मान लो कि 50 किलो न्यूटन का, फॉर एग्जाम्पल 50 किलो न्यूटन की लोड बेंडिंग इस पे आ रही थी, क्लियर? तो इसको अगर हमें सेव करना है और सपोर्ट भी हटाना है तो क्या हम यहां पे ऐसा करें, कोई ऐसा एडहेसिव खोज लें, फेविक्विक जैसे कभी आपने फील किया होगा, आप लगा रहे हो उसको ऐसे कर दो तो आपको हटाने में क्या होता है, काफी दिक्कत होती है। और आपको अगर ये है, इसको मैं ऐसे चिपका दें तो फिर इसको ऐसे करने में बहुत दिक्कत होगी आपको, क्लियर? वैसे ही ये दो मेंबर जैसे ये हैं, इनको इस तरीके का बॉन्डिंग कुछ आ जाए, यहां पे इस तरीके की स्ट्रेंथ कुछ आ जाए, कोर्सिनेस कुछ आ जाए जो इतना दे सके, कितना 50 का, इन अपोजिट डायरेक्शन, इन अपोजिट, दैट विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट, दैट विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट। अगर कोई एडहेसिव लगा दिया जाए ऐसा, देन देयर इज नो नीड टू प्रोवाइड सपोर्ट, then and only then there will be no need to provide the support. We can separate out, we can separate out, we can separate out. Okay, so in that manner joint B can be treated, joint B can be treated individually, this manner, ऐसे ज्वाइंट बी। अगर ये तीनों आप मिला दें, अगर ये तीनों मिला दें तो यही चीज आ जाएगी आपके पास। ये क्या है? व्हाट आर दिस? दीज आर द स्ट्रेंथ, दीज आर द स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू होल्ड। बात समझे जो मैं कहना चाह रहा हूं? इससे बेस्ट एग्जाम्पल कुछ नहीं हो सकता। इज द सेम थिंग। इन दोनों को क्या है, जोड़ दें तो यू विल गेट दैट ज्वाइंट। मीन्स यहां पे दिस वन समझे, इधर इधर का, और फिर या ऐसा करें, ये इस साइड का ऐसा हुआ और ये ऐसा। मीन्स जैसे ये 20 का हुआ, ये 30 का हुआ, तो ये 50 का हो जाए। मतलब समेशन विल बी 0। बात समझ में आ रही है? किन्हीं दो की वैल्यू क्या हो जाएगी? तीसरे के बराबर अपोजिट डायरेक्शन में। मीन्स इन एनी वे वैल्यू ऑफ सिग्मा m एट पॉइंट B 0। दैट वी नो वेरी वेल, दैट वी नो वेरी वेल। तभी ये ज्वाइंट क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम में रह पाएगा। तो दैट इज द सिचुएशन, दैट इज द सिचुएशन। क्लियर? एंड एट पॉइंट B व्हाट विल बी द डिफॉर्मेटेड शेप? व्हाट विल बी द डिफॉर्मेटेड शेप? यहां से पता चल सकता है आपको। कैसे? फॉर दिस पार्ट, सपोज दिस पॉइंट इज A, so AB part has the UDL and this one is C and this part is this, और ये कैसा? ये ऐसा। तो डिफ्लेक्टेड शेप क्या ऐसा होगा क्या?
ए बी पार्ट का ड्यू टू लोड। और इसका क्या, इसका भी कुछ ऐसा ही होगा क्या, और इसका भी कुछ ऐसा होगा क्या, ऐसा होगा क्या? क्लियर बच्चों, समझ आ रहा है? अब अगर सारे पॉइंट्स को यहां पे जोड़ना है, आपको सारे पॉइंट्स को यहां पे जोड़ना है, कैसे जोड़ पाओगे आप? टूटे भी नहीं, बिफोर कोलैप्स आप ऑल मेंबर्स, क्योंकि डिफ्लेक्टेड शेप अगर ऐसे किया तो आपको ऐसे ही आएगा, अलग अलग आपने कर दिया, यहां पे कुछ स्ट्रेंथ आएगी जो कि प्रोवाइड करनी होगी इन द फॉर्म ऑफ कोहेसिवनेस, और वो ज्वाइंट की स्ट्रेंथ हो जाएगी। अगर ज्वाइंट में उतनी स्ट्रेंथ है तब तो वो रहेगा, अन्यथा क्या हो जाएगा, यहां से क्रैक आ जाएगा, टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, फेलियर हो जाएगा, क्योंकि यहां पे बीम और कॉलम दोनों क्या हो रहे हैं, इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ज्वाइंट हो रहे हैं। कंक्रीट की स्ट्रेंथ अगर इतनी प्रॉपर है तो ठीक है, अदरवाइज क्या होता है, आप जो लोग देखते हो क्रैक्स आ जाते हैं, और क्रैक्स आपको वहीं पे ऊपर ही दिखते हैं, कॉर्नर पे दिखते हैं, क्रैक्स दिखते नहीं दिखते हैं भाई, कॉर्नर्स पे दिखते हैं, क्योंकि कॉर्नर्स पे वर्टिकल लोड आ रहा है मैक्सिमम, शियर फोर्स इज मैक्सिमम। ओके, सो अब ये जो अगर इन तीनों को आप अगर जोड़ दें, डिफ्लेक्टेड शेप की बात करें हम केवल, इफ आई एम टॉकिंग ओनली फॉर डिफ्लेक्टेड शेप, केवल डिफ्लेक्टेड शेप की बात करें तो क्या ये ऐसा 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 क्या, ऐसा क्या, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट नहीं, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट डी, ऐसा क्या, ऐसा क्या? तीनों को मैंने जोड़ दिया डिफ्लेक्टेड शेप में, दैट विल नॉट बी पॉसिबल, दैट विल नॉट बी पॉसिबल। आपको ध्यान रखना होगा, आपको नहीं, नेचर ध्यान रखता है, आपको नहीं ध्यान रखना है। नेचर क्या करता है कि यहां पे देखो, यहां पे कितना एंगल है, ये 90, क्या यहां पे कितना ना एंगल 90। सो आफ्टर डिफॉर्मेशन ये अगर ज्वाइंट बी, ए बी और बी, ये दिस वन बी डी और बी सी अगर टूटा नहीं है, क्रैक डेवलप नहीं हुआ है, तो 90 उसके बाद भी रहेगा। इस तरीके से अपने आप को डिफ्लेक्ट करेगा कि 90 जो डिग्री जो पहले है वही बाद में भी रहेगा। और बी ज्वाइंट पे कितना डिफ्लेक्ट हुआ, टेंजेंट ड्रा करके पता चलता है क्या मैं? तो ये किसके लिए टेंजेंट हुआ, ए बी के लिए, बी सी के लिए ये, और इसके लिए क्या, और हाँ बी सी के लिए। तो पहले कितना एंगल था, ये था क्या एंगल 180 था क्या, इस समय पे 180 नहीं रहा, तो ये डिफ्लेक्टेड शेप नहीं हो सकता। लिसन केयरफुली, दैट कैन नॉट बी द डिफ्लेक्टेड शेप। बस समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ये पार्ट ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे ये ऐसे नहीं बन सकता, दिस वन ये ऐसे नहीं, ये पॉइंट नहीं हो सकता, डिसकंटिन्यू नहीं हो सकता, दैट कैन नॉट बी द डिफ्लेक्टेड शेप, दैट कैन नॉट बी डिफ्लेक्टेड शेप बिकॉज इट हैज टू टेंजेंट्स। मैथमेटिक्स यूज हो रही है, इट शुड बी डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट। और कैसा होना चाहिए, इट शुड बी ऐसा क्या, ऐसा क्या, ऐसा क्या, ऐसा क्या? मैंने क्या किया, ये जो ये पॉइंटेड था इसको मैंने यही कर दिया क्या, ऐसे, और इस समय पे टेंजेंट क्या होगी, इट विल हैव ओनली वन टेंजेंट एट पॉइंट बी, इट विल हैव ओनली वन टेंजेंट, दिस पॉइंट बी। अभी केवल मैंने इसकी बात की है, ए और सी की बात की है ना। ये जो वाला पॉइंट पहले था, ये वाला पॉइंट वाला फॉर्म था, इसको मैंने अगर ऐसे कर दूं मैं, तब एक टेंजेंट हो जाएगी क्या, और ये वाला एंगल अभी भी 180 है क्या, है क्या 180? तो डिफ्लेक्टेड शेप, एक तो ये चीज समझ में आ गई कि कुछ पॉइंट नहीं होगा, ये यहां पे क्या होगा, यहां पे डिफ्लेक्ट तो करेगा लेकिन यहां पे ऐसे कुछ होगा, सो दैट इट मे हैव टेंजेंट लाइक दिस वन, क्लियर। और जब ये टेंजेंट हो गई तो ये बी डी पार्ट के लिए क्या होगा, पहले से आप एक टेंजेंट ड्रा कर लो, एंड ऐसे, ऐसे क्या, ऐसा क्या मीन्स अगर यहां पे है, ये फिक्स है, इट इज फिक्स, तो वर्टिकल मेंबर ऐसे, मैं पूरा ही बना देता हूं, ये यहां पे फिक्स है, इफ दिस इज दैट वन,
ऐसा क्या? अब देखो है क्या 90 90, टेंजेंट ड्रा करो, ये प्रीवियस शेप था, ये प्रीवियस शेप और ये आफ्टर डिफ्लेक्टेड शेप। ओके, यहां पे रोटेशन कुछ ऐसा हो सकता है, ये ऐसा हो जाए और ये ऐसे, कैसे भी हो सकता है। क्लियर? डिफ्लेक्टेड शेप डज नॉट चेंज दिस वन एंगल। जितना 45 पहले है तो 45 उतने भी रहेगा, अपने आप को कुछ इस तरीके से एडजस्ट करेगा। क्लियर? तो वो वाली प्रॉब्लम समझ में आई बेटा? ज्वाइंट बी कैसे लिया जाएगा? इस तरीके से, बस ये मैं बताना चाहता था। ज्वाइंट बी विल बी ट्रीटेड इन दिस मैनर। ज्वाइंट बी विल हैव मोमेंट, सम मोमेंट फॉर ए बी सेगमेंट, फॉर दिस वन बी सी सेगमेंट, ये मोमेंट होगा, और ये डी था बी डी के लिए, इस तरीके से होगा, खत्म। और इसके बाद इसको हम ऐसा कर ही चुके हैं, इसको ऊपर ले ही चुके हैं हम, इसको हम ऊपर ले ही चुके हैं, तो बीम बन गया, पूरा काम हो गया, खत्म। और बाकी चीजें हमें मालूम है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। क्लियर? कुछ बचा क्या? कुछ नहीं बचा, क्योंकि जैसे ही अगर ये मोमेंट हमें पता चल गए, इसकी क्वेश्चन लिखनी हमें आती ही है, इसकी क्वेश्चन तो लिखनी हमें आती है ना, इसकी भी लिखनी आती है, इसकी भी लिखनी आती है, तो प्रॉब्लम क्या है? हो गया, खत्म, है ना। मोमेंट इक्वेशन लिखनी आती है, इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाना भी आता है, निकाल के कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर? दैट वाज द कॉन्सेप्ट। कैसे करना है, कैसे लिखना है कॉपी में, वो आप लोग देख लो बचे हुए समय में। क्लियर? सो मैं इरेज करता हूं, ये सब तो नोट कर लिया होगा, यहां से इतना इरेज करो। ओके, सो द फर्स्ट स्टेप इज फिक्स्ड इन मोमेंट। फिक्स्ड इन मोमेंट, जरा फिक्स्ड इन मोमेंट सबका निकाल डालो। कैलकुलेट द फिक्स्ड इन मोमेंट फॉर एवरी सेगमेंट। व्हाट विल बी द फिक्स्ड इन मोमेंट फॉर दिस MF AB? व्हाट इज द वैल्यू? माइनस WL स्क्वायर बाई 12, कितना आया? 2 इंटू 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 स्क्वायर, 4.5। सिमिलरली MF BA क्या हो जाएगा? इट विल बी माइनस एंड इट विल बी प्लस 4.5, क्या कितना? 6.2, एंड दिस वन प्लस 6.2, क्या? तो ये हो गया किसके लिए? AB के लिए। इट इज फॉर AB। सिमिलरली फॉर BC, MF BC निकाल लो। क्या एसेंट्रिक वाला फॉर्मूला क्या है? P AB स्क्वायर डिवाइडेड बाई L स्क्वायर से। ओके, कितनी वैल्यू आई? ये हो जाएगा 30 इंटू A इज 3 मीटर इंटू 2 स्क्वायर डिवाइड बाई L स्क्वायर मीन्स 5 स्क्वायर। हाउ मच इज दिस वैल्यू? वो भी कितना? 4.16, और माइनस साइन क्या? 4.16 है बेटा। क्या 8 कर दिया था क्या? हाँ बेटा, गलत मत करना, अदरवाइज आगे कभी गलती ही हो गया, समझे ना। यहीं से शुरू, स्टार्टिंग गड़बड़ हो जाएगी। तो प्लस 4.16, ये कितनी आई? हाउ मच इज दैट वैल्यू? 14.4 माइनस का 14.4, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ MFCB? ये हो जाएगा BA स्क्वायर डिवाइडेड बाई L स्क्वायर। हाउ मच इज दैट? 30 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5 स्क्वायर। वैल्यू प्लस में, हाँ 21.6। यस 21.6 क्या? ठीक है, 21.6 ना।
तो ये किसके लिए हुआ? दैट इज फॉर बी सी। ए बी के लिए हो गया, दिस इज फॉर बी सी। और किसके लिए? बी डी के लिए निकाल लो। बी डी के लिए एम एफ बी डी मिड पे है क्या? WL/8 या इसी फार्मूले से रख लो। ओके, और आप BD को कैसे ले चुके हो? यहां पे चाहो तो बना भी लो। B पॉइंट इज दिस, ऐसे B पॉइंट इज ऐसे बना लेना बेटा। B पॉइंट इज दिस इज पॉइंट B और D पॉइंट ऐसे। क्लियर? ये कितना है? 15 किलो न्यूटन। ऐसे इसको कंसिडर करना। और यहाँ पे ये थोड़ा सा समझने के लिए, दिमाग को समझने के लिए, एग्जामिनर को नहीं चाहिए ऐसे। तो ये वाला बना, चाहे तो मैं इधर बनाऊं इस साइड पे। अगर इसको घुमाओगे देन यू विल हैव दिस शेप, दिस पॉइंट इज बी, दिस, एंड दिस वैल्यू इज हाउ मच? एम बी डी। ओके, दिस पॉइंट इज डी एंड दैट वैल्यू इज एम कितना? एंड दिस वैल्यू इज 15 किलो न्यूटन। ओके, अब तो MFA भी निकालने में भी कोई दिक्कत नहीं। MBD में कितना हो जाएगा? ये वाला माइनस क्या? अच्छा, ये मैंने क्लॉकवाइज बनाना चाहिए ना यहाँ पे सारे, क्लॉकवाइज। यस, सो दैट वैल्यू इज माइनस 15 × 15 WL/8 था इंटू 2 × 2 स्क्वायर डिवाइड बाई L स्क्वायर। L स्क्वायर इज 7.5 माइनस का क्या? एंड सिमिलरली MF DB प्लस 7.5। तो दीज आर द फ्रिक्शन मोमेंट। हाँ, कुछ उल्टा लिख दिया क्या? उल्टा हो गया क्या? कितने लोग एग्री करते हैं? ये वैल्यू जरा चेक इट आउट। सही है गलत है? कुछ सही बोल रहे हैं, कुछ गलत बोल रहे हैं। समझ में आ गया ना? ऐसी चीज का ध्यान रखना है। वही मैं उधर देख रहा था तो मिसमैच है। ऐसी चीजों का ध्यान रखना है, जल्दबाजी में ना होने पाए, क्योंकि आपने ये बना लिया ना। अब क्या दिक्कत है? DB वाला माइनस होगा, ये वाला माइनस होगा, तो कहां पे लिखा हुआ है? नीचे लिख दिया है, तो कोई जरूरत थोड़ी है कि वही चीज को फॉलो करो। माइनस कर लो इसको, इट विल बी माइनस और दिस विल बी प्लस। क्लियर? हमेशा ध्यान रखना है। छोटी छोटी चीज है, बड़ी चीज है क्या? इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग, स्मॉल इश्यू, लेकिन क्वेश्चन गलत करने के लिए पर्याप्त है। ओके, इन चीजों का ध्यान रखना है, जल्दबाजी में हो जाती है। ओके, तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। और इसको हमने आपको बताया था कि मैं सारा काम किससे करूंगा? फिगर के थ्रू करूंगा। पहले मैंने बताया था, तो इसको भी मैं फिगर के थ्रू ही करूंगा। इसको भी फिगर के थ्रू ही करूंगा। आई वांट टू बिल्ड द कॉन्सेप्ट, कॉन्फिडेंस ऑफ कॉन्सेप्ट। केवल कॉन्सेप्ट ही बिल्ड नहीं करना है, कॉन्फिडेंस भी। ओके, देखो कैसे करते हैं इसको, है ना? किसी भी किताब में फिगर के थ्रू ये वाला तो सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि वहां पे इक्वेशन को यूज करेंगे। ठीक है, सो चलो बनाते हैं हम। ऐसा करें कि ए बी पार्ट ऐसा ले लेते हैं। दिस इज ए बी पार्ट, ए बी, और इसको ऐसा और इसका ऐसा। दिस इज बी पार्ट, दिस इज सी पार्ट, दिस इज डी पार्ट। हो गया क्या? और यहां पे लगा दें क्या हम? ऐसा क्या लगाएं? हमें लगाना तो सारा क्लॉकवाइज ही है। ओके, ऐसे दिस वन दैट वन, क्लॉकवाइज मीन्स ऐसा, ऐसा क्या है ना? और ये ऐसा क्या?
ऐसा क्या? कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लियर? नहीं, गलत हो गया ना? नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। सो दैट वैल्यू लिख लो, कितनी है ये? सही बताना, ये -4.16 और ये वाली वैल्यू 4.16 एंड दिस वन वैल्यू -14.4 and that one value is 21.6. This one value 7.5 प्लस का या माइनस का? This one value प्लस की माइनस की? प्लस का ना, प्लस का और माइनस का ये वाला, ठीक है ना? यस। क्लियर? सो द नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं हम लोग? कोई डाउट? अगला स्टेप क्या करते हैं हम लोग? सर का टाइम। So the next step is what? We have to release the degree of freedom. सी पॉइंट पे क्या है? ये है, तो पहले सी पॉइंट पे कर दें क्या? सी पॉइंट पे कर दिया जाए। क्या करना पड़ेगा सी पॉइंट के लिए? यस। सो ये यहां पे इसको खोला जाए। ओके, दिस पॉइंट इज सी एंड दिस पॉइंट इज बी। यहां पे क्या करना पड़ेगा? यस, 21.6 माइनस डायरेक्शन में लगा दो। क्लियर? और अब क्या होगा इसके बाद? कैरी ओवर कितना? आधा। आधा मीन्स कितना? माइनस 11 पॉइंट 10.8। ओके, और फिर क्या करेंगे? सम कर देंगे। यही तो करेंगे। उसके बाद सम कर देंगे। ओके, क्लियर? तो अब चाहें तो हम एक फिगर और बना लें, लेकिन वो फिगर बनाने की जरूरत पड़ती थी क्या? हमें कोई जरूरत नहीं पड़ती थी। यहीं पे हम देख लेंगे, सम कर देंगे। लेकिन मॉडिफाइड फिक्स्ड इन मोमेंट के लिए या चलो बना ही लो फिगर, कोई दिक्कत नहीं, बना लो उसको। सो मॉडिफाइड फिक्स्ड इन मोमेंट, ये फिक्स्ड इन मोमेंट क्या था? इनिशियल। दिस फिक्स्ड इन मोमेंट वाज द इनिशियल एंड मॉडिफाइड में क्या होगा? ये वाला लगाया और उधर कैरी ओवर, उसके बाद जोड़ दो। क्लियर? तो ये हमें मिलेगा क्या? ये क्या? ऐसा क्या? ऐसा क्या? वैल्यूज बता दो। ये इसमें तो कुछ चेंज हुआ नहीं। इट इज 4.16, इट इज 4.16 also, but in plus sign. This is minus 14 point नहीं कितना हुआ ये? -14.4 तो ये था, 10.8 और आ गया, दोनों माइनस साइन में। सो ये हो गया कितना? 25.2 और यहां पे कितना? 0 क्या? ओके, और यहां पे तो कुछ चेंज हुआ नहीं। हुआ क्या? ये तो वैसे ही है।
BC पार्ट में हुआ था तो BC पार्ट में चेंज होगा, बस BC पार्ट में चेंज होगा। ये वाला तो वैसे ही लिखा जाएगा, कितना लिखा जाएगा 7.5 और ये माइनस का। दीज आर द फिक्स्ड एंड मोमेंट, क्लियर, दीज आर द फिक्स्ड एंड मोमेंट। माइनस कर दिया जाए, यस, इसको दैट शुड बी इन माइनस साइन, दैट शुड बी इन माइनस साइन। इसके बाद क्या करते थे, आफ्टर सुपरपोजिशन ऑफ दिस टू वी गेट द मॉडिफाइड एंड आफ्टर दैट क्या करेंगे हम, ये जो बी पॉइंट पे कर रखे हैं, क्या कर रखे हैं, फिक्स कर रखे हैं, उसको क्या करेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम देंगे। वी विल गिव द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर 1 यूनिट रोटेशन। तो कैसे देंगे ये जरा समझो, कैसे देंगे ये समझो। बी पॉइंट पे ये है, नेक्स्ट फिगर विल बी फॉर थीटा बी इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट स्टेप विल बी फॉर थीटा बी इक्वल्स टू 1। मोमेंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस थीटा बी इक्वल्स टू 1, दिस वन। इसको ऐसे हेडिंग डाल के लिखो दो, मोमेंट्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस theta b equals to 1. That is our next, that is the objective to draw our next figure. Moment required to produce unit rotation at point B, that is our objective, next objective. कैसे कर सकते हैं, it's very simple. Take this point B, ऐसा था, ऊपर का नहीं था, ऐसा था, this point was A, this point is hence and this point is क्या है, ये फिक्स है। सो ऐसा रोटेशन में क्लॉकवाइज देना है, तब पहले समझो इधर, रोटेशन हमें क्लॉकवाइज देना है। सो ऐसा क्या, ये इसी की बात कर रहे हैं क्या, इक्वल्स टू 1, यही रोटेशन की बात कर रहे हैं क्या, इसी की बात कर रहे हैं क्या, क्लियर। तो फिर ये ऐसे क्या, ये ऐसा क्या, ऐसा इस डायरेक्शन में क्या, भाई टेंजेंट तो यही होगी ना, क्योंकि 90 डिग्री, ये तो 90 डिग्री हमें रखना ही पड़ेगा। इसका डिफ्लेक्टेड शेप क्या हो जाएगा, ऐसे, क्लियर। और ये वाला डिफ्लेक्टेड शेप ऐसा क्या, ऐसा क्या, और नीचे वाले का डिफ्लेक्टेड शेप ऐसा क्या, एग्रीड। ये थोड़ा सा और सुंदर बना दो, ऐसा क्या, दिस ज्वाइंट बी विल हैव सच टाइप ऑफ रोटेशन। जरा सामने देखो, ऐसा ही होगा क्या, एंड दैट वैल्यू विल आल्सो बी कितनी, 1 क्या, बस यही समझना है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। क्लॉकवाइज जो है ना, क्लॉकवाइज लगाएंगे, कैलकुलेट करने के बाद जो भी होगा देख लिया जाएगा। माइनस आ जाएगी तो एंटी क्लॉक घूमेगा, माइनस वैल्यू आएगी, इसका मतलब है कि उल्टा घूमेगा। हम तो पहले पॉजिटिव वाला लेके चलें तो पॉजिटिव यही होगा, ये वाला पार्ट ऊपर गया, इधर का नीचे हुआ, और ये पार्ट इधर चला गया, दैट इज द डिफ्लेक्टेड शेप, दैट इज द डिफ्लेक्टेड, इट इज व्हाट, डिफ्लेक्टेड शेप आफ्टर थीटा बी इक्वल्स टू 1। हालांकि जरूरत नहीं थी बनाने को आपको, बट फॉर द कॉन्सेप्ट बिल्डिंग जरूरत नहीं थी डिफ्लेक्टेड शेप बनाने की, डिफ्लेक्टेड शेप बनाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मोमेंट कहां पे लगाना है, व्हिच वन इज नियर, व्हिच वन इज फार, इसके लिए मैं बताया आपको, व्हिच वन इज नियर, व्हिच वन इज फार, इसके लिए केवल। ओके, सो फॉर ए बी, सभी इधर ध्यान दे, फॉर ए बी व्हिच वन इज नियर एंड, point B, far end is A, far end is this one, A, C, D, that are क्या, far end, और near end is only B itself. Okay, so to produce, सभी ध्यान दें, so to produce this unit rotation, what we have to apply, 4EI by L, moment 4EI by L, okay। और जैसे ही हम इसको 4EI by L करेंगे, क्या कर देगा इधर, 2EI by L,
यहाँ पे देख रहे हैं ना, आई है कि 2i है, सावधान रहना। तो आई है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, और ये कैसा, क्लॉकवाइज का ही। ओके, इसी तरीके से ऐसा रोटेशन प्रोवाइड करने के लिए इसकी BC पार्ट के लिए कितनी 3i/l, दैट 4ei जल्दबाजी में नहीं, 3ei/l। और i देख लो 2i है क्या, तो ठीक है 3ei/l, और इधर कितना 0, बस दैट्स इट। यस, यही जल्दबाजी में इसको आधा नहीं कर देना है, क्योंकि वो क्या है, हिंज है। ओके, इसके लिए BD के लिए देख लो क्या करोगे, ऐसा क्या, ये 4ei है, 4e और ब्रैकेट में 2i कर लो डिवाइडेड बाई l। l कितना है, अरे l की वैल्यू भी तो रखो भाई, कितना कितना है, 5 5 है क्या सब जगह। तो ये यहाँ पे तो 5 रख लो, यहाँ पे भी 5, यहाँ पर भी 5, ये 4 है। ओके, तो ये इधर भी ट्रांसफर क्या, कितना, ये हो गया फाइनली 8, नहीं ये 2ei/2ei, तो ये कितना हो गया, ei ओनली, दैट विल ट्रांसफर ei ओनली एंड डायरेक्शन विल बी दैट। ओके, आफ्टर हैविंग दिस you are able to write the slope deflection equation. After making these two, it's very simple to make the क्या end moment equation you can write. So end moment equation you can write, लिख लो। So end moments फॉर AB, सो MAB कितना लिखे, इन दोनों को सम करना है क्या भाई, समिंग ऑफ दिस टू, इफ दिस इज फिगर 1, इफ दिस इज फिगर 1 एंड इफ दिस इज फिगर 2, सो द एंड मोमेंट इज समेशन ऑफ किसका, फिगर 1 प्लस, बस दैट्स इट। सिंपली सम कर दो, एल्जेब्रिक सम। एक चीज का ध्यान रखना है, फिगर 2 मल्टीप्लाई बाई क्या, मल्टीप्लाई बाई थीटा बी, ये है, क्योंकि वो किसके लिए है, फिगर 2 किसके लिए है, थीटा बी इक्वल टू 1, एक्चुअल में तो थीटा बी होगा ना, क्लियर। सो MAB बराबर कितना लिखूं बताओ, -4.16 प्लस 2ei, ओनली 2ei थीटा बी, बस हो गया खत्म। ओके, बाई 5, यस। ओके, नाउ MBA कितना है, 4.16 प्लस 4ei/5, MBC के लिए, MBC के लिए लिखना है, MCB के लिए लिखना है, हमें M लिखना है, MBD के लिए लिखना है और MDB के लिए लिखना है, इतने के लिए लिखना है। BC के लिए, BC किधर है, -25.2 प्लस आगे कितना है 3i/5 क्या, यस 3ei/5 इंटू थीटा बी। ओके, MCB कितना है, MCB इज 0, इज नोन टू अस, इट इज नोन टू अस। ओके, और इसी की वजह से तो हमें निकालना ही नहीं पड़ा। ओके ना, BD 7.5 प्लस 2ei इंटू थीटा बी क्या, एंड दिस वन -7.5 प्लस ei थीटा बी। ओके, आगे काम आपको मालूम है क्या, क्या करना है,
अप्लाई इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखो, अप्लाई इक्विलिब्रियम इक्वेशन, इक्विलिब्रियम इक्वेशन कहां पे, एट बी, इक्विलिब्रियम इक्वेशन एट पॉइंट बी, एंड यू नो वेरी वेल क्या होगा एट पॉइंट बी, क्या होगा, सारे के सारे मोमेंट क्या होंगे, जीरो हो जाएंगे. सो द वैल्यू ऑफ एम ए बी नहीं, एम बी ए प्लस एम बी सी प्लस एम, और जैसे ही आप इसको जीरो करोगे तो ई आई थीटा बी की वैल्यू निकल आएगी क्या. यू आर इन पोजिशन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ई आई थीटा बी, और कैलकुलेट करके बता दो. कितना आया, 3.98 क्या, 3.98. So that value is 3.98. So after knowing that value, calculate n moment. Calculate the value of n moment. Calculate करके बताएं. After knowing that value, tell me the value of which one? MAB. Tell me the value of MAB, MBA, MBC. MCB is known to us. CB, MBD or MDB. Tell me that these three values. One value I know in advance. That value is 0. I know in advance. Other values. MAB कितनी है, -2.5 क्या, -2.57, -2.57. बाकी की बताओगे क्या, बताओ. BA हाउ मच, BA बताओ. 7.35 क्या, 7.35. BC बताओगे, बोलो. BC वैल्यू -22.8 क्या, -22.81. और CB तो मालूम ही है. MBD बताओ, MBD 15.46 क्या, 15.46. और ये वाली बता दो अब, DB -3.52 क्या, -3.52. So after knowing these values, our given frame is determinate. After knowing these values, known क्या हो गया, नहीं अभी known नहीं है. एक प्रॉब्लम आएगी, उसको भी मैं, टाइम है भी. Okay. So after having this, I will plot the BMD. I can plot the BMD. क्लियर किसी को डाउट हो तो पूछ लो बेटा. इट्स वेरी सिंपल. कहीं पे समझ में आएगा, कोई डिफरेंस समझ में आएगा आपको, कोई डिफरेंस समझ में आया, जैसे बीम का वैसे इसका क्या दिक्कत है, सिमिलर सेम, डरने की जरूरत नहीं है. क्या करना है, थोड़ा सा इसको उधर इमेजिन कर, सोच के इमेजिन कर लो, प्लस माइनस का भी लफड़ा नहीं होगा. यही तो करना है. लोड अगर इस साइड से है तो इसको इधर ले जाना, बस बीम की तरीके से दिमाग को बैठा लो कि यार ये बीम है, प्लस माइनस कौन होगा वो भी कोई डाउट नहीं. ओके, आगे चलो. ये वाली चीज भूलना नहीं, इसको रोटेट करके ऊपर ले जाने के लिए भूलना नहीं, क्योंकि जब तक रोटेट नहीं करोगे मोमेंट कहां से आएगा. ओके ना. So the next step is to plot the, यहीं पे कर लेता हूं मैं. Finally I got
Finally I got so finally we have वैल्यूज बताओ. दिस वन वैल्यू कितनी आई है? दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी. एम ए बी की वैल्यू -2.57. व्हाट इट्स मीन? एंटी क्लॉकवाइज. तो डायरेक्शन ऊपर को या ऐसे नीचे को? ऊपर को. ओके. एंड द वैल्यू इज 2. और हमेशा बीम में भी ऐसे ही होता था, पहले वाला प्लस माइनस ही आता था. सेम चीज इसकी बताओ, बी ए की बताओ. प्लस है और माइनस? प्लस का. तो डायरेक्शन कैसा? ऐसा क्या? एंड इस वैल्यू इज 7.35. आगे बताओ, बीसी का बताओ. कैसा बनाओ? नीचे ऊपर? ऊपर का ना. कितना लिखूं? 22.81. क्लियर? इसके लिए तो कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है. और इसके लिए नीचे, इसके लिए क्या करूं? बीडी कितना? बीडी ये वाला 15 प्लस का. तो ऐसा क्या? ओके. लिखा जाए 15.46. यस यू आर सही क्या? और जरा देख भी लो, इसको इससे जोड़ा जाए तो बराबर हो जाएगा क्या? इसका मतलब है कि जो डिफ्लेक्टेड शेप मेरा जो बिगड़ गया, कहां पे बनाया था? ऐसा बना, ऐसा था ना डिफ्लेक्टेड शेप हमारा. दिस वन ऐसे ऐसे बनाया था, ऐसे बनाया था. सो थीटा भी इज तो प्लस में आया था. हाँ देख लो, ऐसा ही है क्या? ये दोनों जुड़ के कितना हो गया है? इधर ये दो है ना. सो नीचे यहां पे माइनस. तो ऐसा ऐसा क्या? 3 पॉइंट. क्लियर? कोई दिक्कत नहीं. सो अभी without calculating the reaction we are not in position to plot the SFD, but we are in position to plot the BMD. Okay, that I want to tell before leaving this class. Before leaving this class I want to tell how to plot the BMD. And the BMD will be plotted in the same manner as in case of ये beam, in the same manner. देखो कैसे. यहाँ पे क्या लगा हुआ था? लोड 15 का लगा था क्या? 15 यहाँ यूडियल था यहाँ पे. और वैल्यू कितनी थी? 2 किलो न्यूटन पर मीटर. यहाँ पे क्या था? पॉइंट लोड था क्या? 30 किलो न्यूटन. एंड द डिस्टेंसेज वर 3 मीटर, 2 मीटर एंड दैट वाज 2 मीटर, 2 मीटर. ओके. अब देखो, अब समझो बेटा, समझना है आपको. दिस पॉइंट इज ए, सी और ये डी. दिस इज दैट आई एम गोइंग टू टेल हाउ टू प्लॉट द बीएमडी इन करेक्ट मैनर फॉर पोर्टल फ्रेम. क्योंकि यही चीज सब सारे उसमें लागू होगी. ऐसा नहीं कि केवल ये इसी में. एपी का पहले प्लॉट कर लो इन द सेम वे एज वी आर डूइंग फॉर बीम. प्लॉट करो जरा. ये यूडीएल तो WL स्क्वायर बाई 8 क्या? WL स्क्वायर बाई 8 की वैल्यू हाउ मच? इट इज 2 into 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8. हाउ मच इज दैट? 6.25. सो ऐसा क्या? 6. इट्स वेरी सिंपल है ना. हम BMD प्लॉट कर रहे हैं ड्यू टू सुपरपोजिशन. BMD फ्रॉम सुपरपोजिशन, फ्रॉम सुपर
पोजीशन ड्यू टू लोड। ये हो गया, इसको भी जरा प्लॉट करो। ये हो जाएगा कितना, पी ए बी बाई एल, क्या कितना आया, P मीन्स 30 इंटू 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5, हाउ मच 36। सो दिस वैल्यू इज मच मच हायर। ऐसे ऐसा क्या, एंड दैट ऑर्डिनेट इज 36, दैट ऑर्डिनेट इज 36। इसी तरीके से इधर भी कर लेंगे क्या, ये वाला क्या पार्ट बना था, ऐसा ही बना था क्या, दिस इज बी पार्ट और ये ऐसा ऐसा बना था। दिस पार्ट इज डी, दिस पार्ट इज डी। तो इसका क्या होगा, इसका ऐसा क्या, ये वाली वैल्यू कितनी होगी, ये हाँ ये दिस वैल्यू इज 15 इंटू 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 4, यही तो होगा ना। तो कितनी वैल्यू आई 15, तो ये 15 आया। दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज डी। लिसन, यहां पे देखो, यही तो है क्या, इसकी वैल्यू भी देख लो, इसकी वैल्यू कितनी है, यहां पे मोमेंट देखो, ये ऊपर गया तो कैसा, ऐसा क्या, ऐसा क्या, इधर कितना बी पे, ऐसा क्या, यही तो है, करेक्ट। तो इसका बीएमडी यहीं पे बना लो, इसका बीएमडी ऐसा क्या, ये वैल्यू कितनी है 3.52, सो दिस इज 3.52 और इधर कितना 15, ऊपर जाएगा ये 15.46। तो ऐसा क्या, ऐसा क्या, तो यही को जरा नीचे ले आओ, इसी को क्या ले आओ, नीचे ले आओ। तो नीचे का क्या हम करें, ऐसा करें क्या, दिस वैल्यू इज 15, दिस वैल्यू इज 15 और ये वैल्यू यहां पे क्या करें, इसको 15.4 और इसकी वैल्यू क्या करें यहां पे 3.52, दिस पॉइंट इज डी, और ऐसा जोड़ दें क्या, दिस इज द बीएमडी फॉर किसके लिए, फॉर पार्ट बीडी, बीडी के लिए। क्लियर, डिफिकल्ट चीज तो मैंने बताई थी और सिंपल चीज आपको मालूम ही है, समझ गए होंगे क्या करना है ना, सिंपल चीज तो मालूम ही है। क्या है ये, सेम डायरेक्शन, तो ये दिस इज 2 पॉइंट कितना, ये 2.57 एंड दिस वैल्यू इज कितना यहां पे 7.35। ऐसा क्या, अब देखो क्लियर, ऐसा अब देखो इसके लिए क्या, यहां पे 22.8 क्या होगा, इसका मतलब है सभी ध्यान देखो, फॉर पार्ट बीसी क्या होगा बीएमडी, ये यहीं से नहीं आ जाएगी, क्या होगी और ऊपर जाएगी। क्लियर जो कहना चाह रहा हूं, तो ये कुछ यहां पे ये कितना 36 था, तो इतना मत ले जाओ, ये ऐसा ले जाओ यहां पे, नहीं और थोड़ा सा ऊपर ले जाओ, ऐसे 22.81 और इसको कितना लेना था 7.35 और यहां पे सी पॉइंट पे 0 क्या, तो ऐसा करें क्या, इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी। बस हो गया, बीएमडी इज कंप्लीट, दिस इज द कंप्लीट बीएमडी। एक चीज बची हुई है प्लस माइनस की, वो कर लोगे क्या आप, वो आप कर ही लोगे, एंड मोमेंट्स आर नेगेटिव। ओके चलो कर लेते हैं, ये माइनस क्या, ये माइनस का, ये प्लस का क्या, ये पूरा माइनस का क्या, ये पूरा प्लस का क्या, ये माइनस का क्या, ये प्लस का, ये माइनस का, बस हो गया। थोड़ा सा ब्यूटिफिकेशन कर दो ऐसा, this one is a complete BMD. Any problem?
क्लियर? तो कोई दिक्कत है क्या, चाहे बीम का हो चाहे पोर्टल फ्रेम का हो, देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम। आई थिंक द सेम थिंग, सेम चीज मैंने की है, कोई अलग चीज किया है क्या? बताओ, कोई आज कोई नई चीज बताई मैंने? आज मैंने कोई नई चीज बेटा सामने, आज मैंने कोई नई चीज बताई? नहीं बताई, बस उसका यूज बताया मैंने आपको, कोई नई चीज नहीं बताई गई, सारी चीज वही है, बट उसको चलाना कैसे है, यूज कैसे करना है, वो हमने आपसे डिस्कस किया आपके सामने, वही हमने आपसे डिस्कस किया, कोई नई चीज नहीं। ओके, घर पे जाकर आपको करना होगा, इसकी वैल्यू चेंज कर लेना, जो पॉइंट लोड है ना इसकी वैल्यू चेंज कर लेना, आप ऐसा कर लेना, इसको 2i कर लेना, इसको 2i कर लेना, 2i i, ओके, आंसर बदल जाएगा आपका। ओके, डायरेक्शन भी बदल देना, क्वेश्चन ही बदल जाएगा। और ये सारे क्वेश्चन स्टैट प्रो में इसको बनाना लैब में जाके, और इसका आंसर मिलाना, दैट शुड बी सेम, दैट शुड बी सेम। ओके, स्ट्रक्चर एनालिसिस को पूरा स्टैट प्रो में सारी एनालिसिस उसमें सारे कर सकते हो आप, और करना जरूर। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।